our previous class. As in our previous class, we studied about angles. We learned about right angle, obtuse angle, right, and acute angle, and also straight angle. So those were angles. In today's class, we are going to learn about some other geometrical figures. So the first geometrical figure that we are going to learn about is a rectangle. It is what? Rectangle. So everybody draw this rectangle in your notebook with sides A, B, C, and D. Right? Draw this rectangle with sides A, B, C, and D. So what are sides, what are edges, that I will explain in a moment. अभी के लिए आप rectangle draw करो and हर एक rectangle के कोने पे mark it as A, B, C, and D like it has been done in the figure. Give me a thumbs up once you are done drawing it. Yes, Omkar. भैया हमें रेक्टेंगल मतलब ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसके मतलब कोने पे डी सी ए और बी ऐसे लिखना है. राइट, हाँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है एंड कोने पे ए बी सी डी लिख देना है. ओके. Thank you, Sanjana. Karthik, I can see your hand is raised. Any questions, Karthik? भैया मेरा वो बुक का ये है ना 6 नंबर का, मेरा वो होमवर्क हो गया है. Great. If you have already done it, then it is fine. This class ये will. मैं पिक्चर भी दिखा सकता हूँ ये. Okay, fine, Karthik. If you have done it, then great. You can use this class as a quick revision for whatever you have already studied. That's great if you have already done it. Okay, so now that everybody has drawn this, let's start. So basically, what you can see in your rectangle now, everybody look at the figure which you have drawn in your notebook. Okay, what you just drew was a rectangle. Okay, now in rectangle mein, what you are observing is that we have 4 sides. ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है. 4 साइड्स कैसे हैं? Let's observe this rectangle closely now. Let me just zoom in a bit so that you can see this clearly. Yes. देखो, अब इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ए से लेके बी तक की जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, इसने यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो मेरा लाइन निकल के आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइड. इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल का साइड. तो ये कितना साइड हुआ? ये अभी एक साइड हो गया. ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर. अभी हम आगे बढ़ते हैं. Sanjana, I can see you are giving a thumbs down. Yes, you can quickly come off mute and tell me what you didn't understand. हाँ भैया, वो आप मुझे एक बार फिर से समझाओ ना, मुझे ये नहीं समझ आया कि वो साइड कौन सी साइड है, इसलिए मैंने हैंड रेस किया. अच्छा, अभी ध्यान से देखो, हमने क्या किया? ये फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर को ड्रॉ किया. हर एक कोने पे हमने ए बी सी डी लिख दिया. कोने पे, एकदम कोने पे लिखा है ना? यस. अभी हम देख रहे हैं कि ए से बी तक जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ना ए से बी तक, इस लाइन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, इस लाइन को आपने देखा? यस. तो ये लाइन जो आपकी आई ना निकल के, इसको हम क्या बोलते हैं? साइड. इसको हम क्या बोलते हैं? साइड. SIDE. Everybody note this down. Note this down in your notebook below the rectangle which you have drawn. Below A, B, write down side.
and give me a thumbs up once you are done. Thank you कार्तिकी, थैंक यू संजना, ग्रेट। अभी ये हमारी एक साइड हो गई। अभी नाउ टेल मी, ऐसी आपको और कितनी साइड्स दिख रही है इस फिगर में? ऐसी और कितनी साइड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? Who can help भैया to do so? Okay, Sanjana is raising her hand, Karthik is raising her hand, and Samruddhi is raising her hand, Omkar is raising his hand. So great. Let's hear from Omkar this time. I think bhaiya 2 sides. Two sides. What are those two sides, Omkar? कहाँ से कहाँ तक होगा? A, B, D and C. A, B, D and C. ये एक साइड हो गया, एंड दूसरा साइड आप कह रहे हो ये D से C तक. Yes. Great. Omkar is saying two sides, A, B और D, C. ठीक है, तो इस लाइन को कैन आई कॉल दिस लाइन ए बी? ए से बी तक जो लाइन गई, क्या मैं उस लाइन का नाम ए बी दे सकता हूँ? Yes भैया, yes. Yes भैया. सो ऐसे मैं नाम दे सकता हूँ, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड नेम हाउ वी डिफाइन अवर लाइंस इन मैथमेटिक्स. ठीक है, जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होता है तो उस पॉइंट का जो हमने नाम दिया होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी जब ज्वाइन होकर जो लाइन बनी, तो फिर उस लाइन का जो नाम होगा वो होगा ए बी. ग्रेट. सो अभी ओमकर ने क्या बोला कि हमारे पास एक और साइड है विच इज बी सी. बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो अब हमें एक और साइड मिल जाएगा. ठीक है, सो आई विल राइट साइड ओवर हियर एज वेल. ठीक है, नाउ लेट्स हियर फ्रॉम कार्तिकी. I think 3 side होनी चाहिए. ठीक है, मतलब 1 is complete and 2. ठीक है, तीसरी साइड किधर होगी? Left side, I think. लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड मतलब डी से ए तक. Yes. सो डी से ए तक एक और साइड हो गया, तो आप कह रहे हो डी से ए तक एक और साइड आ गया. बट डी से ए तक एक और साइड आया है, देन भैया कैन ऑब्जर्व समथिंग जो एकदम सामने दिख रहा है आंखों के. यस समृद्धि. There is total 4 sides, that is A, B, B, C, and A, B, B, C, C, D, and A, D. Like this they are. Thank you. Because of the total lines are 3, and Omkar said there are 2, but only he said the means D and C and A and B. But the total side are 4 of it. Okay, so Samruddhi is saying that these are total 4 sides. Okay, so let me summarize this. देखो हमने खुद से अभी देखा A से B तक एक लाइन गई तो एक साइड बन गया. ठीक है, फिर ओमकर ने बोला D से C तक एक लाइन जा रहा है तो D C एक साइड बन गया. देन कार्तिकी ने बोला D से A तक एक लाइन जा रहा है तो D A एक और साइड बन गया. अभी यहाँ पे एक और लाइन जा रहा है, राइट? यहाँ एक लाइन गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें लाइन दिख रहा है सामने साफ साफ. So if we put a line from C to B, if we observe this line, then this is one more side. So total कितनी sides निकल के आ गई हमारी rectangle में? 4 sides. These are our total 4 sides. So आप सभी यहाँ पे साइड मार्क करो अपनी कॉपी में, एंड इन साइड्स के नाम क्या क्या होंगे? पहली साइड का नाम हुआ ए बी, राइट? फर्स्ट साइड का नाम क्या हुआ? ए बी. सेकेंड साइड का क्या नाम हुआ? बी सी. थर्ड साइड का क्या नाम हुआ आपका? सी डी. एंड फोर्थ साइड का क्या नाम हुआ आपका? डी ए. डी ए या ए डी कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, ऑर्डर इधर मैटर नहीं करता. ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, राइट? सो एवरीबॉडी नोट दिस डाउन एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन. थैंक यू कार्तिकी, ग्रेट, good notes. Sanskriti, show me your notes. Are you noting it down? Yes भैया. Show me your notes. Show me your notebook. Wait. Yes, have, but where are the sides? इसमें साइड कौन कौन से संस्कृति?
ये AB, okay, DC, PC and AD. Good, good work. Great. So all of you have noted this down. ठीक है. So इस फिगर को हम क्या बोल रहे थे? रेक्टेंगल. ठीक है. पहले तो ये देखते हैं कि इस फिगर को रेक्टेंगल बोल क्यों रहे हैं. ऐसे हमने 4 लाइन बना के इन 4 लाइन को जोड़ दिया. Then why are we calling this rectangle? तो इसको हम रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं? Because the shapes, ऐसी shapes जिनमें 2 sides are equal and 2 sides are unequal, those shapes are called rectangle. So अगर आप इस शेप को ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आर इक्वल. जितनी लंबी ये लाइन है उतनी ही लंबी ये लाइन भी है, राइट. ए बी एंड डी सी दोनों बराबर लेंथ के है कि नहीं है? देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है. टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दे आर इक्वल एंड टाइप नो इफ यू थिंक नो दे आर नॉट इक्वल. ए बी के जस्ट ऊपर सी डी जा रहा है. यस यस यस, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस. सो इट इज इक्वल, राइट. अभी ये वाली लाइन देखो ए डी. ये जो AD वाली लाइन है क्या ये इक्वल है AB के? क्या ये AB के बराबर है या AB से थोड़ी छोटी दिखती है? टाइप नो इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दे आर अनइक्वल. सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग नो, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये अनइक्वल है. सो AD और CB जो है वो दोनों आपस में तो इक्वल है. ठीक है, AD और CD आपस में इक्वल है. ठीक है, अमंग देमसेल्व्स दे आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू AB और CD, राइट. So this is the property of a rectangle. In rectangle, you have 2 sides which are equal and 2 sides are unequal. So that is why this is called rectangle. So now let's get back to our sides वाला concept. ठीक है, हमने देखे total 4 sides है. अभी इसमें हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं. Let's observe now कि कहाँ पे 2 sides meet हो रहे हैं. Let's identify the points जहाँ पे 2 side meet हो रहे हैं. पहला साइड हमारे टोटल 4 साइड्स है AB, BC, draw them again, CD and AD. ठीक है, अब बताओ 2 साइड्स कहां पे मीट हो रहे हैं? Who can observe where are the 2 sides meeting? Observe the point where 2 sides are meeting and raise your hand to answer. Yes Arjun. भैया AB और CD. AB और CD पे मीट हो रहे हैं. यस. बट AB तो लाइन है, पूरी लाइन ये रही और CD लाइन ये रही. तो मीट कहाँ हो रहा है? मिल कहाँ रही है? 2 लाइन मिल कहाँ रही है आपस में? यस संजना. BC और DA. ठीक है, थैंक यू अर्जुन. हाँ भैया, ये लाइन AB और DC से ऐसे मिल रही है. मतलब AB और DC है तो DA और CB है, इसलिए वो लाइन दोनों ज्वाइंट हो रही है. Okay, now everybody hear me out very clearly. देखो हमारे पास 4 लाइंस हैं. ठीक है, पहली लाइन AB. Now I am observing closely this line AB and I am observing this line BC. अभी मैं सिर्फ इन 2 लाइन को देख रहा हूँ, बाकी लाइंस को मैं नहीं देख रहा. ये वाली लाइन AB और ये वाली लाइन BC. AB और BC लाइन I want to observe कि ये कहाँ पे मीट हो रही है. सो कैन आई से कि A से लेके B यहाँ पे खत्म हुआ एंड B से C यहाँ स्टार्ट हुआ, तो AB और BC मीट कर रहा है इस पॉइंट B पे. पॉइंट B पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है. यस और नो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर. यस यस यस, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस. नाउ ऑब्जर्व क्लोजली. AB और BC पॉइंट B पे मीट हुआ. ठीक है, अभी बताओ ये लाइन CD, ये वाली लाइन CD लाइन और ये वाली लाइन CB. ठीक है, CB लाइन, ये दोनों कौन से पॉइंट पे मीट हो रही है? कैन आई से BC यहाँ पे खत्म हुआ और CD यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट हो रही है. कैन आई से दिस? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. C. So all of you have already started guessing. Yes, it is meeting at point C. Now चलो अब आगे चलते हैं. ठीक है, अभी आगे हम गए तो कौन सी लाइन है? CD लाइन है. ठीक है, CD line and DA line. ठीक है, so can I say that this line CD and this line DA are meeting at this point D? ये इस point D पे meet कर रहे हैं. Type yes in the chat box. Yes, great. D. Now tell me this line DA and line AB, where are these meeting? Line DA और AB कहाँ meet कर रहे हैं? Yes ओमकार.
भैया मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, सी के बाद वो डी का। सी के बाद डी का कौन से पॉइंट कौन से वाले पार्ट पे हम पर? वो सी और डी का आप बोल रहे थे, सी डी अच्छा, लाइन का। सी डी और वो डी है। समझ। ठीक है, देखो यहाँ से हम लाइन गए सी डी, ये सी से लेके डी तक जो लाइन है वो सी डी है, ये वाली लाइन सी डी यस है। डी से लेके यस ए तक जो लाइन है वो डी है, राइट। यस। तो इसको चलो एक बार के लिए लाइन 1 में नाम दे देता हूँ, इसको लाइन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये वाली लाइन और ये वाली अब लाइन कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट कर रहे हैं? डी पे। डी पे मीट कर रहे हैं, राइट। तो हमने बस इस पॉइंट डी को हाईलाइट कर दिया। ओके, आई क्लियर भैया। ठीक है, तो अभी सिमिलरली बताओ, अब लाइन डी है, डी से लेकर के ए तक जो लाइन हो गई और ए से बी तक जो लाइन हो गई, डी ए और ए बी, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? क्या भैया क्वेश्चन मतलब पूछा मुझे, मतलब देखो ध्यान से सुनो, लाइन डी ए लाइन और ए बी लाइन, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं अभी? ए पे। ए पे मीट कर रहे हैं, राइट। यस। तो अभी बताओ टोटल कितने पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए हमारे पास? Everybody type it in the chat box. Type in the chat box how many points we have identified. 4 भैया। Thank you, Omkar. Let's hear from other people. Sanskriti Singh 4, Samruddhi Singh 4, 4, 4, 4, 4. Most of you are at a 4, which is absolutely correct. So if I count this number of points, we have total 4 points. So the point where 2 lines meet, ठीक है, ऐसा point जहां पे 2 लाइन मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में? उस पॉइंट को वी कॉल इट वर्टेक्स। दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सो एवरीबॉडी राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। उन पॉइंट्स को मार्क करो एंड राइट वर्टेक्स, ठीक है। ए बी, यहाँ पे राउंड 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 पॉइंट मार्क करो, राइट, एंड एक एरो देके राइट इट इज अ वर्टेक्स। वी ई आर टी ई एक्स। Vertex is nothing. Vertex is a point where 2 lines meet. जहां 2 लाइन मीट करे उस पॉइंट को हम vertex बोलते हैं। Any doubts in this? Raise your hands. If no questions, note it down in your notebook. पर डाउट में ये मत पूछना कि भैया समझ नहीं आया। यस कार्तिक। भैया वर्टेक्स का क्या स्पेलिंग बोला? VERTEX। यस ओमकार। भैया मतलब जे मतलब डी सी और ए बी मतलब दोनों भी पॉइंट है, मतलब उन चारों को मतलब हम वर्टेक्स नाम देंगे कैसे? yes. देखो किसी भी पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट नाम नहीं देंगे। यहाँ पे कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है, हमने ऑब्जर्व किया। वर्टेक्स का क्या मतलब है? जहाँ पे 2 लाइन मिल रही है, ठीक है। मान लो ये मेरा हाथ एक लाइन है, ठीक है, ये वाला हाथ दूसरा लाइन है, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन हवा में है, ठीक है, हवा में। जैसे ही मैंने इन दोनों लाइन को यहाँ पे मीट किया, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट हुआ ना, ये पॉइंट जहाँ पे मीट हुआ, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में ऐसे हमने टोटल 4 पॉइंट्स देखे, राइट। मतलब भैया डी और बी मतलब जोड़ने के इधर आता है सी, तो सी वर्टेक्स है, यही मीनिंग ना? कौन कौन सी लाइन आप जोड़ रहे हो? मतलब ए से बी और सी, ए बी सी जो लाइन है ना। हाँ, लाइन ए बी और लाइन बी सी, राइट। यस यस, बी सी। उन दोनों को मतलब ऐसे ज्वाइन किया ना तो फिर बी वर्टेक्स आएगा। एब्सोल्युटली मतलब वो बीच में आएगा उन दोनों के लाइन के पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, ठीक है। अभी इस फिगर की तरफ देखो, ये फिगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन दिस फिगर? हाउ मेनी वर्टेक्स? रेज योर हैंड्स टू आंसर। Let's hear from Rushali this time. 4 vertex. Why 4 vertex, Rushali? Because there are not joining but rectangle and you drawn those are same ना। तो इसलिए रुशाली कह रही है सिंस सेम शेप है इसलिए 4 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। दिस इज रुशालीज रैशनल
Let's hear from other people. Let's hear from Arjun this time. बोलो अर्जुन। भैया 2 दो वर्टेक्स है, कहाँ कहाँ बताओ? डी पे और ए पे। इधर हम इस शेप की बात कर रहे हैं, ये वाली शेप की। यस। इस शेप में कहाँ कहाँ है बताओ? चलो मैं नाम भी दे, यहाँ पे ए नाम देते हैं। वेट एक मिनट, इसको अच्छे से करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन अ वाइट बोर्ड। ठीक है, वाइट बोर्ड पे अच्छे से करते हैं, आपको है ना सब कचड़ा हो रहा है। तुम्हें बरोबर आहे. परत सांगतो सगळ्यांनीच। हट्ट्या पोरांना दाखवलं तर रेडी होतील ना ते। अर्जुन यू कैन गो बैक टू सॉरी टू म्यूट। ठीक है, अभी इस लाइन का नाम मैंने दे दिया, चलो ए बी। ठीक है, इस लाइन का नाम दिया सी, इस लाइन का नाम दिया ई। ठीक है, एंड इस लाइन का नाम दिया जी और एच। ठीक है, who will tell? Let's hear from Karthik this time. भैया ये राइट करना है क्या? राइट नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है इसमें कितने वर्टेक्स है बताओ। 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स की अभी क्या डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, ऑनकर के साथ हमने डिस्कस करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि वर्टेक्स का मतलब कुछ तो होता है, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वर्टेक्स में। ट्राई करो, चलो मीनवाइल समृद्धि से पूछते हैं। There are 0 vertex because of the rule was that if it's joining, then only there is a vertex. If it is not joined like this is it, so it is not any vertex. एब्सोल्युटली करेक्ट समृद्धि। सो वर्टेक्स में कार्तिकी मैंने ओमकर के साथ क्या डिस्कस किया था, हम एक कंक्लूजन से पहुंचे थे कि दो लाइन जहां पे मीट कर रही है, दो लाइन जहां जुड़ रही है। यहाँ पे तो सारी लाइंस हवा में है, सब हवा में है, कहाँ कहीं कोई लाइन जुड़ रही है क्या? सो अगर ये लाइन जुड़ी नहीं रही तो पॉइंट बना ही नहीं, तो वर्टेक्स है ही नहीं। तो आप देखोगे चारों तरफ लाइन खुली हुई है, कहीं जुड़ी नहीं रही है। सो दैट इज व्हाई इन दिस फिगर वी हैव 0 वर्टेक्स, 0। So I hope everybody is clear now with the concepts of rectangle. So we identified the sides and vertex in a rectangle. Now we will look at a different geometrical figure which is called square. So now if you observe this geometrical figure over here, so this is called a square. In case of a square you have all sides equal. ठीक है, rectangle में हमारी दो sides equal थी and दो sides unequal थी. But in case of square आप अगर ध्यान से देखोगे तो चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। SR, RM, MP एंड PS चारों साइड्स इक्वल है, राइट? सो एवरीबॉडी ड्रॉ दिस स्क्वायर इन योर नोटबुक। इस स्क्वायर को नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन। Give me a thumbs up once you are done noting this. Thank you, Yash. Thank you. Thank you, Amber. Thank you, Kartiki. Great. I can see a couple of people are having doubts. Let me take it one by one. Roshali, go ahead. भैया किसी भी शेप में कौन सा भी लेटर आएगा क्या? कोई सा भी लेटर आ जाता है, हाँ। ये तो नेमिंग कन्वेंशन है, आप किसी से भी नाम करना स्टार्ट कर सकते हो।
कोई भी लेटर दे सकते हो, इट इज योर चॉइस। यहाँ पे आप SRMP के बजाय ABCD भी लिख सकते हो, तब आपकी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, पहली लाइन AB, दूसरी लाइन CD, ठीक है, ऐसे हो चलेगा। अभी यहाँ पे आपने SRMP नाम किया है, तो इसलिए आपकी लाइन का नाम कैसे पड़ेगा, पहली लाइन का नाम हो जाएगा SR, राइट। दूसरी लाइन का नाम बताओ, ऐसी दूसरी लाइन का नाम क्या होगा, RM। RM, फिर आगे MP, फिर PS, ऐसे चलता जाएगा। कूल, ग्रेट। So now that you have noted this down, now observe how many sides are there in this square. इस स्क्वायर में कितने साइड्स है। साइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेनी है। अब जल्दी से फटाफट देख के चैट बॉक्स में डालो कितनी साइड्स है स्क्वायर की। Amkar is saying 4, Prasad is saying 4, waiting for other people, so 4, Kartiki 4, Roshali 4. Great, so everybody is at a 4, which is 100% correct. अगर मैं देखूं टोटल कितनी साइड्स है, तो यहाँ से पहली साइड आ गई SR, दूसरी साइड RM, थर्ड साइड इज MP, and fourth side is PS. So total 4 sides are there. Cool. So square also has 4 sides. Everybody note this down, 4 sides in square. ठीक है, 4 sides, इसके आगे in square लिख लो। Note this down in your notebook and give me a thumbs up once you have. Great. Now the game starts. ठीक है, अभी यहाँ पे वापस से आपको वर्टेक्स आइडेंटिफाई करने हैं। फटाफट वर्टेक्स आइडेंटिफाई करके वर्टेक्स के नाम बताओ मेरे को। अभी वर्टेक्स के नाम टाइप करो चैट बॉक्स में। 4 पता है मेरे को, 4 वर्टेक्स है, सब दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स के नाम बताओ। अभी वर्टेक्स की डेफिनेशन रिकॉल करो, दैट इट इज अ पॉइंट वेयर 2 लाइंस मीट एंड आइडेंटिफाई दोस पॉइंट्स, एंड उनका नाम लिखो उन पॉइंट्स का। प्रसाद इज सेइंग MR, Karthik is saying PM, MR, RS, PS, PM, MR, RS and PS. Who all are agreeing with Karthiki? Karthiki is saying that the vertices are PM, MR, RS and SP. Who all are agreeing with this? Karthiki is telling that these are the 4 vertices in this square. Type yes in the chat box if you agree with Karthiki. Type no if you don't agree. Type yes for agree, type no for not agree. Come on, yes and no. Type it in the chat box. I'm waiting. Yes, yes. I can see most of you are agreeing yes. Great. So, unfortunately, all of you are wrong. Because what Karthiki identified are not vertices but sides. These are all sides. If I closely observe, PM is a side. P से लेके M तक ये साइड बना, M से लेके R तक ये एक साइड बना, R से S तक ये साइड बना, S से लेके P तक साइड बना। तो ये सारे जो मैंने नाम इनको दिए, PM, इसका मतलब लाइन P से स्टार्ट हो रही है, M पे खत्म हो रही है, इसलिए इसका लाइन PM हुआ। बट वर्टेक्स का क्या मतलब था, ऐसा पॉइंट जहां पे 2 लाइन मीट कर रही है। सो इफ आई क्लोजली स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पॉइंट्स, ये वाली लाइन PM और ये वाली लाइन SP इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम देख रहा हूं मैं सामने, P। इस पॉइंट का नाम तो P है, P और M जोड़ के तो एक लाइन बना रहे हैं, पर सिर्फ पॉइंट का नाम जो है वो क्या है, वो P है यहाँ पे। तो इस P पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट हो रही है, इसलिए वर्टेक्स का हमारा क्या नाम होगा, P। सिमिलरली आप आगे जाओगे तो MR, ठीक है, MR एंड RS, ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे मीट हो रही है, पॉइंट R पे, तो इस वर्टेक्स का क्या नाम निकल के आएगा, R। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, RS एंड SP, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इसका नाम निकल के आया S, ठीक है। सिमिलरली PM और MR, ये दोनों लाइन कहाँ मीट हो रही है, इस पॉइंट पे, सो ये पॉइंट क्या है, M। सो ये सारे आपके वर्टेक्स हो गए।
These all are your vertexes. Are you all clear? Give me a thumbs up if you are, and raise hands for any doubt. Okay, let me take it one by one. Yes, Omkar. Bhaiya, I say to the chat box, I not agree first. So Omkar, was this your rationale? If I would have asked you to come off mute and share, were you thinking in this direction or something else? मतलब भैया मुझे जो आपने वर्टेक्स मुझे पता है, मैं मतलब पी और आर, मतलब पी और आर के मतलब बीच में आता है एम, तो फिर एम आ गया वर्टेक्स, और फिर पी एस आर के बीच में आता है एस, मतलब वो हो गया एस हो गया वर्टेक्स, एंड एस आर एम के मतलब बीच में आता है आर। इसका एक और इजी तरीका बताऊं ओमकर, इसको ना आप ऐसे मत देखो, एस आर एम ऐसे मत देखो, सिंपली ऐसे देखो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, अगल बगल वाली जो लाइन है ना, उन्हें से देख लो वो ज्वाइन किधर हो रही है, किस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है वो वर्टेक्स का नाम, सिंपल। यस वही प्रसाद, भैया, वही टेक्निक भैया मैंने यूज की थी। ग्रेट ग्रेट ऑसम। प्रसाद, एनी डाउट? भाई और कितना वर्टेक्स का मतलब वो आप जोड़ रहे हैं ना, ऐसा? जोड़ रहे हैं, हाँ, जहाँ पे दो लाइंस ज्वाइन हो रही है आपकी, वो वर्टेक्स को। यस रुशाली। हम उल्टा पलटा कैसे भी कर सकते हैं क्या? कैसे भी कर सकते हो, एक ये कहीं से भी देखना स्टार्ट करो, देखो खुद ट्राई करो, चलो नीचे से देखना स्टार्ट करो, आप देखो एस आर और आर एम कहाँ ज्वाइन हो रहा है? एस आर और आर एम, क्लियर कर दो, बताओ एस आर और आर एम कहाँ ज्वाइन हो रहा है? आर पे। ग्रेट। अभी उठा के कहाँ से, चलो किधर चले, अभी इधर साइड आ जाते हैं, इधर ऊपर ना जाके डायरेक्ट इधर जंप कर जाते हैं, ठीक है, अभी बताओ पी एस और एस आर कहाँ ज्वाइन हो रहा है? अभी इन दोनों लाइन को देखते हैं। पी एस ये वाली लाइन और एस आर ये वाली लाइन, ये एस से ज्वाइन हो रहा है। ग्रेट, दूसरा वर्टेक्स आ गया आपका। ऐसे ही आप जब ऊपर वाली लाइन से देखोगे तो आपका एम आ जाएगा, पी आ जाएगा, राइट। सो स्क्वायर के टोटल कितने वर्टेक्स आ गए? 4 वर्टेक्स आ गए, 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड्स, सो स्क्वायर हैज टोटल 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड्स। क्लियर एवरीबॉडी? राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, a square has 4 vertex and 4 sides. भैया मुझे समझ में नहीं आया, कार्तिकी ने वो ही उल्टा करके बताया ना, ज्वाइनिंग करके। कार्तिकी ने क्या बोला? कार्तिकी ने बोला कि आपके जो वर्टेक्स के नाम जो कार्तिकी ने दिए ना, वो क्या बोला कार्तिकी ने? एस आर। देखो कार्तिकी ने जो वर्टेक्स के नाम बोले वो क्या बोले थे? एस आर, ठीक है, एस आर एम आर, ठीक है, एम आर एम पी एंड पी एस, ठीक है। तो जब आप एस आर लिख रहे हो तो एस आर का मतलब, एस आर का मतलब ये है कि लाइन एस से स्टार्ट हो रही है और आर पे खत्म हो रही है, तो इसलिए ये जो नाम हुआ ये लाइन का नाम हुआ, राइट, ये वर्टेक्स का नाम नहीं हुआ, ये लाइन का नाम हुआ। जब मैंने एस आर लिख रहा हूँ तो एस आर को जब मैं ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूंगा तो मैं एक पॉइंट इधर दूंगा और एक पॉइंट इधर दूंगा, एक का नाम एस रखूंगा पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का नाम आर रखूंगा, एंड उन दोनों लाइन को ज्वाइन करूंगा, तो ये मेरी लाइन एस आर आ गई। तो अब बताओ, वर्टेक्स का डेफिनेशन तो ये है कि जहां पे दो लाइंस मीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि दो लाइन कहाँ मीट हो रही है? नहीं कर सकता ना, बिकॉज ये तो खुद ही एक लाइन है, राइट। यस। एवरीबॉडी नाउ नोट दिस डाउन। ठीक है, now that if you have noted this down, let's look at another figure now, which is triangle, ठीक है, this is our last figure which is triangle. So अब triangle में आप खुद बताओगे ना, who is brave enough, who will be able to identify both sides and vertices in this triangle? Who is brave enough? I can see Kartiki is raising her hand and Samruddhi, both of them are raising their hand with equal excitement. And a couple of new participants as well. So let's ask from Yash this time. भैया 3 साइड 3 वर्टेक्स। कौन कौन सी साइड्स के नाम बताओ एक बार यश फटाफट।
Why are 3 sides और 3 वर्टेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला साइड वाई आर, दूसरा साइड, हाँ यश आप म्यूट पे चले गए, फिर से बोलो। why are second side are real? एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड साइड, Third side ly. एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्टेक्स, वर्टेक्स जल्दी जल्दी, वर्टेक्स दो दो लाइंस यहाँ पे मीट हो रही है। 3 3 वर्टेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ कहाँ, पहला पॉइंट कहाँ है? y, second point r, and third point l. Absolutely correct. Absolutely correct. Yash has given absolutely correct answer. 3 sides and 3 vertex. Anybody having any doubt in this, raise your hands, and if you are clear, then write this down. 3 sides and 3 vertex for this triangle. हाँ यश Like- बोलो, बोलो बोलो। I can go mute. Yes, yes, you can go on. Any doubts? For any doubts, raise your hand. I can see Sanjana has been raising her hand for a really long time. Sanjana बोलो। No भैया, no doubt. Great. ओमकर, मतलब भैया कौन से भी मतलब हमने कौन सी भी मतलब शेप ले लिया ना, तो फिर उसके जितने भी मतलब वाई एल आर जितने भी मतलब साइड्स होंगे उतने ही उसके मतलब एंगल्स मतलब सॉरी वर्टेक्स होंगे क्या? yes no, उतने ही वर्टेक्स नहीं होंगे। यू हैव टू क्लोजली आइडेंटिफाई जहां ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैंने इस टाइप की एक शेप कोई ड्रॉ करी, ठीक है। ओके भैया, माय डाउट इज क्लियर। अच्छा चलो, जाते जाते क्लियर है तो ये शेप बताओ, इस शेप में कितने साइड्स और कितने वर्टेक्स? बाकी सब चैट बॉक्स में ट्राई कर सकते हैं। कार्तिकी, कार्तिकी आप बहुत हाथ खड़ा कर रहे थे ऊपर ऊपर, चलो आप बताओ ये इसमें कितने साइड्स और कितने वर्टेक्स होंगे इस वाले फिगर में? 4 sides and 3 vertex. 4 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स की डेफिनेशन जस्ट हमने सीखी, जहां पे 2 लाइन ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ लाइन ज्वाइन कर रही है, कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको जहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रही है? और जो बीच में है ना, मिडल में, ये वाला। यस। तो पहला वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा सेकंड इज दैट, ये वाला, हाँ, तीसरा और लेफ्ट साइड वाला, ये। तो total- दैट्स 3. ग्रेट, ग्रेट। So absolutely correct. We have 3 sides. We have 3 vertices. 3 vertex हो गए मेरे पास, एंड साइड कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4, 4 साइड हो गई एंड वर्टेक्स 3 हो गए। Great. So now that these concepts are clear, now quickly solve this exercise which is given in your book. ठीक है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करो एंड आंसर्स लिखो, अपनी बुक में ही लिखो, ठीक है। ओपन योर बुक एंड राइट दिस डाउन इन योर बुक एज वेल। अगर बुक नहीं है तो नोटबुक में लिखो। पहला फिगर हमारे सामने ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में पहला साइड आइडेंटिफाई कर दिया इन्होंने ए बी, बाकी 2 साइड के नाम लिखो एंड वर्टिसेस के नाम लिखो। सिमिलरली रेक्टेंगल का एंड सिमिलरली स्क्वायर का जस्ट हमने अभी साथ में किया था, अभी इंडिपेंडेंटली आप करो। जब हो जाए देन गिव मी अ थम्स अप।
सेंड मी अ पिक्चर ऑन माई व्हाट्सएप प्राइवेटली जब आप पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। जब तीनों सॉल्व हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट फोटो भेजो अपना। Thank you, Prasad. Thank you, Samruddhi. Thank you, Sanskriti, for sharing your answers. Absolutely correct. Thank you, Kartiki. Absolutely correct. So most of you who have sent me the answers, their answers are absolutely correct. That means all of you have understood it quite well. Great. So if any doubts in this, then you can raise your hand. And if no, then we can move ahead to circles. Prasad, yes. भैया हमारा होमवर्क यही होगा ना? हाँ यही होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क और मैं दूंगा, अभी ये इतना ही। अभी तो ये हम क्लास में साथ में कर रहे हैं ना, इसके अलावा थोड़ा सा और दूंगा, ठीक है। ओके ग्रेट। सो नाउ दैट दिस थिंग इज क्लियर टू अस, वी विल मूव टू सर्कल्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एंगल्स पढ़ लिया था, अभी हम सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सर्कल्स के बारे में पढ़ने के लिए वी विल डू दिस क्विक एक्टिविटी, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में एवरीबॉडी ब्रिंग अ सर्कुलर शेप विद यू, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई कटोरी हो सकती है, ठीक है, कटोरी हो सकती है, या फिर मेरे पास जैसे ये राउंड डिस्क है, वो राउंड डिस्क हो सकता है, ठीक है। सो इस टाइप का ब्रिंग अ सर्कुलर शेप। Bring a circular shape and give me a thumbs up once you are ready. कटोरी ले आओ सब, किचन से एक काम करो, अगर और कुछ सर्कल नहीं मिलता किचन में जाओ और मम्मी से बोलो एक कटोरी दे दो। नाउ वंस यू हैव ब्रॉट दिस बाउल विद यू, एक पेपर लो, ठीक है। टेक अ पेपर, कॉपी से एक पेपर फाड़ लो, एक पेपर लो, ठीक है। उसके ऊपर ये सर्कल, इस बाउल को रखो एंड अगल बगल पेन लगा के ड्रॉ दी सर्कल, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग माई सर्कल, ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ योर सर्कल एज वेल ऑन योर पेपर्स। Once you have drawn the circle, then cut it out. सर्कल को ड्रॉ करके कट करके निकालना है आपको बाहर।
सो भैया ने सर्कल कट करके निकाल लिया अपना। ऐसे ही सबके जब सर्कल्स रेडी हो जाए तो गिव मी अ थम्स अप। सर्कल्स अपने रेडी करके दिखाओ मेरे को। Thank you, Yash. Great, a perfect circle. Waiting for other people to show their circles. Thank you, Samruddhi. Great, perfect circle. Waiting for other people to switch on their videos and show me their circles. Sanskruti, Nandini, Roshali, Vedant, Santosh. Quickly switch on your videos and show me your circles. Thank you, Malhar. Perfect circle. Thank you, Kartiki. Perfect circle. Thank you, Prasad. Thank you, Yash. Great. Awesome. Now what we are going to do is, ठीक है, देखो जैसे भैया कर रहे हैं, इस सर्कल को एक फोल्ड करो, ठीक है, एक फोल्ड करो परफेक्टली इस तरीके से, हाफ में इसको एक फोल्ड मारो। सबने एक फोल्ड मार लिया? देखो परफेक्ट हाफ में फोल्ड हो गया, ये हो गया ना। अच्छे से इसको फोल्ड कर दो एक बढ़िया सी, ताकि लाइन पड़ जाए। थैंक यू प्रसाद, थैंक यू यश, थैंक यू ओमकर। ग्रेट, एक फोल्ड हो गया। अभी इसको एक और फोल्ड करना है, ठीक है, इस सर्कल को एक और फोल्ड किया हमने। बढ़िया से लाइन दे दो फोल्ड करके। देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। सर्कल का 1/4 हो गया अभी ये। एवरीबडी शो मी दिस। थैंक यू यश, थैंक यू कार्तिकी, थैंक यू समृद्धि। ग्रेट, ऑल ऑफ यू हैव डन इट। नाउ अभी इस सर्कल को हम करेंगे खुल जा सिम सिम, ठीक है, वापस से खोल दो पूरा फुल फुल खोलो और देखो आपके सर्कल में 4 लाइन पड़ गई है, ठीक है। क्या सबके सर्कल में 4 लाइन पड़ी है? देखो भैया के में 4 लाइन पड़ चुकी है। यस, सबके 4 लाइन पड़ गई है, ठीक है। अब बताओ ये चारों लाइन कहाँ पे मीट हो रही है? ये चारों लाइन कहाँ पे मीट हो रही है, ये देख के बताओ। पहले तो इन चारों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, इन चारों लाइन को ड्रॉ करते हैं हम। लेट्स ड्रॉ दीज लाइंस, ठीक है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप स्केल की हेल्प ले सकते हो। तो भैया इज ड्रॉइंग हिज लाइन एंड यू कैन ड्रॉ योर लाइन एंड कम बैक। मैंने ड्रॉ कर दिया है, देखो 4 लाइंस ड्रॉ कर दी। थैंक यू प्रसाद। थैंक यू, थैंक यू स्वराज। ग्रेट, ग्रेट वर्क। थैंक यू ओमकर, ऑसम, ग्रेट वर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। संस्कृति, वेदांत, यश, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। थैंक यू समृद्धि। ग्रेट। सो अभी ये 4 लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ध्यान से देखो और बताओ मेरे को, ये चारों लाइन मीट कहाँ पे हो रही है, कहाँ मीट मिल रही है? ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। ये चारों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है? कहीं पे मिल रही है ये चारों लाइन? व्हाट भैया इज सीइंग दैट ये चारों लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ सेंटर पे। देखो ये इधर लाइन, ये वाली लाइन इधर टच कर रही है, इधर से इधर टच ये कर रही है, इधर से इधर ये टच कर रही है, इधर से ये टच कर रही है। सो कैन आई से दीज ऑल दीज 4 लाइंस आर मीटिंग ओवर हियर एट द सेंटर। यहाँ सेंटर पे मीट कर रही है। सो ऑल ऑफ यू गिव अ डॉट एट सेंटर। सेंटर पे एक डॉट देके एक पॉइंट बना दो एंड दिखाओ मेरे को जब आपने पॉइंट बना दिया। ग्रेट।
सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ द सर्कल। एकदम सर्कल के बीचों बीच आ रहा है ना ये, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम सपोज हम ओ दे देते हैं, ठीक है। सो भैया इज गिविंग पॉइंट ओ, ठीक है। भैया इज गिविंग हिज पॉइंट नेम ओ, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू कैन गिव नेम टू सेंटर ऑफ योर सर्कल्स नाउ। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, भैया ने ओ दिया है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीबॉडी गिव अ नेम, यहाँ पे एक नाम लिख दो एंड दिखाओ लिख करके, भैया ने ओ दिया है। कार्तिकी आपने क्या नाम दिया है? आपके पॉइंट का क्या नाम है? मेरे को दिख नहीं रहा है। ए, ग्रेट ग्रेट। सो सबने अपने पॉइंट्स का नाम दे दिया? पॉइंट्स पे देना है क्या? नहीं नहीं, मतलब सिर्फ सेंटर पे नाम दे दो, इस सेंटर पे एक पॉइंट का, ठीक है। तो अभी ये मेरे सर्कल का जो सेंटर हो गया, दिस सेंटर इज कॉल्ड ओ, ठीक है। दिस सेंटर इज कॉल्ड ओ, ठीक है। अभी देखो, अब इस ओ से लेकर के, इस ओ से लेकर के सर्कल के एंड तक जहां पे सर्कल खत्म हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट ओ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जहां पे सर्कल खत्म हो रहा है वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ओ से लेके यहाँ तक। सो भैया विल ड्रॉ हिज लाइन एंड कम बैक। ये लाइन ड्रॉ कर दी भैया ने, ओ से लेकर के सेंटर से लेके सर्कल के एंड तक जहां पे सर्कल खत्म हो रहा है। और जहां पे आपका ये पॉइंट खत्म हो रहा है, इस पॉइंट का भी एक नाम दो। तो सपोज मैं आर दे देता हूँ इस पॉइंट का नाम, ठीक है। जहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया? आर। वंस यू हैव ड्रॉन दिस, शो दिस टू मी। ग्रेट। सो ये जो अभी आप लाइन देख रहे हो, जो ओ से आर तक जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। पॉइंट ओ था सेंटर, अभी ओ से आर तक जो आपने लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस लाइन का आप नाम क्या बोलोगे? ओ आर। एंड दिस इज व्हाट टेलिंग अस, दिस इज टेलिंग अस दैट दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी आप यहाँ से देखो, ओ से आप जितनी भी लाइंस निकालते जाओगे ना, उन सबकी लेंथ बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ से कितनी भी लाइंस आप निकालते जाओ, इनफाइनाइट लाइंस निकाल दो आप यहाँ पे, सबकी लेंथ बराबर आएगी। तो वो सब सर्कल के क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। सो आई एम गोना राइट डाउन रेडियस ओवर हियर, RADIUS। सो एवरीबॉडी राइट रेडियस, RADIUS फॉर दिस लाइन, OR, RADIUS, रेडियस। Give me a thumbs up once you have written. रेडियस लिख लिया मैं, ग्रेट। तो ये रेडियस हो गया सर्कल का, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ से सर्कल के बीचों बीच लाइन जो जा रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड डायामीटर। ये पूरी की पूरी मेरे को सर्कल की एक टाइप से लेंथ बता रहा है, ये सर्कल की लेंथ क्या है। तो सर्कल की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। सो इन पॉइंट्स का पहले मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने नाम दे दिया ए, इधर लास्ट वाले पॉइंट का ए, दूसरे वाले पॉइंट का बी, ठीक है। ए और बी मैंने नाम दे दिया इन दोनों पॉइंट्स का, ए इधर का, बी इधर का। तो ये जो बड़ी सी लाइन बन के आई ना मेरी, जो पूरे के पूरे सर्कल को कवर कर रही है, दिस इज कॉल्ड डायामीटर। सो आई एम गोइंग टू राइट डायामीटर ओवर हियर, ठीक है। डायामीटर, ए बी लाइन जो हुई मेरी, दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो ये आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे बुक में लिखा है डायामीटर। स्पेलिंग इज DIAMETER। यस यस, एनी डाउट? भैया किधर तक ले लेनी है? मतलब देखो ए से भी, इधर तक ना? हाँ, एक यहाँ से शुरू हो रही है ना लाइन हमारी, ए से लेके जहाँ पे खत्म हो रही है, बी पे खत्म हो रही है, तो ये पूरी लाइन आपकी डायमीटर हो गई। ग्रेट।
So has everybody done this? Give me a thumbs up if you have. Great. अब भैया इसका स्पेलिंग क्या है डायमीटर का? देखो मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग मेरी ऑन है ना, यहाँ पे देखो DIAMETER। लिख दिया आपने? ग्रेट। सो अभी एक चीज हम ध्यान से देखने वाले हैं, सभी अब ध्यान से देखो, सबने लिख लिया ना? ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी चीज है जो आप देख के ही पता कर पा रहे हो इसमें, दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ठीक है, ये देखो, ये रेडियस है सर्कल का। ओमकर, यू आर नॉट सीइंग इन द स्क्रीन, पीपल लुक वेरी क्लोजली इन द स्क्रीन। ठीक है, ये देखो, ये आपका डायमीटर हुआ ए से बी तक। ठीक है, ओ से आर तक आपका रेडियस था। अभी मैंने क्या बोला था, यहां से लेके यहां तक आप जितनी भी लाइंस खींचोगे वो सब रेडियस है। ठीक है, वो सब सर्कल की रेडियस है एंड सबकी लेंथ बराबर है। ठीक है, सो अब यहाँ से खींचते जाओ तो कहना ही से कि ओ ए इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, कि ओ से ए जो लाइन जा रही है वो भी सर्कल का रेडियस है। देखो समझ आया ये, कि ओ से ए तक जो लाइन जा रही है वो भी सर्कल का रेडियस है। ओ से आर यहाँ पे बराबर लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ से ओ से ए जितनी डिस्टेंस है एंड ओ से आर जितनी डिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं है? कैन आई से इट इज इक्वल? Type yes or no in the chat box. Yes if you agree and no if you don't agree. Yes, ठीक है, तो सब एग्री कर रहे हैं। सो बेसिकली ये डबल हो गई। तो बेसिकली आपका जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है, राइट? आपका जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। सो डायमीटर को अगर मैं d से रिप्रेजेंट करूं, सो कैन आई राइट diameter equal to 2 multiplied by r? Can I write this? Yes or no? Yes, I can write this. So this is what we have observed in our circle, कि सर्कल के जो बीचों बीच लाइन जा रही है डायमीटर, इट इज डबल द रेडियस। ये यहाँ पे रेडियस हुआ हमारा, इस रेडियस का डबल कर दिया तो हमको डायमीटर मिल गया, पूरा का पूरा सर्कल की क्या लेंथ है वो मिल गया। ठीक है, अभी इसमें जिसको डाउट है वो अपने हाथ खड़े करो, आई विल क्लियर देम वन बाय वन। यस कार्तिकी। भैया मेरा डाउट नहीं है, बट 4:30 बजे ना दीदी की क्लास है, ये क्लास कब खत्म होगी? हाँ बस हो गई, बस दिस इज द लास्ट पॉइंट इन सर्कल। ठीक है, डायमीटर हो गया आपका, रेडियस हो गया आपका। अभी क्या करो, इस सर्कल को बस बीच में से ऐसे फोल्ड कर दो। ठीक है, बीच में से आपने इसको कैसे भी फोल्ड कर दो। ठीक है, एंड देन फोल्ड करके खोल दो, जो बीच में लाइन पड़ी उस लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया मैंने डी और ई। तो ये जो आपकी लाइन पड़ गई ना बीच में सर्कल में, ऐसे बीच में छोटी सी, तो इसको भी कॉल कॉर्ड, CHORD। इसको हम क्या बोलते हैं? CHORD, कॉर्ड। तो ऐसे बीच में सर्कल को आप कहीं भी फोल्ड कर दो, कहीं से भी ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये भी एक कॉर्ड हो गया। यहाँ से फोल्ड कर दो, इधर जो लाइन पड़ जाएगी ये एक कॉर्ड हो गया। तो ऐसी बहुत सारे आप कॉर्ड्स बना सकते हो सर्कल में। ठीक है, ओमकर पूछो क्या डाउट है? भैया कॉर्ड मतलब आप बोल रहे थे, अब कॉर्ड मतलब क्या? कॉर्ड बस आपकी सर्कल में कोई भी लाइन हो गई ना, जो सर्कल में आपकी जा रही है, एक पॉइंट से शुरू हो रही है दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो आप क्या देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली जो डायमीटर है वो भी एक टाइप का कॉर्ड ही है, बट पूरे सर्कल पे मान लो मैंने इधर भी एक कॉर्ड बनाया। ठीक है, एक और मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर एक कॉर्ड बनाया। ठीक है, ये एक और कॉर्ड पड़ गया। ऐसे ही मैं कॉर्ड बनाते जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर चलते जा रहा हूँ और मैं यहाँ पहुंच गया एकदम बीचों बीच। तो यहाँ पे जब मैंने फोल्ड करके यहाँ पे जब एक और बीचों बीच कॉर्ड बना दिया, तो क्या वो डायमीटर के बराबर हो गया? Yes. तो can I say that diameter is the longest chord on a circle? Yes, भैया diameter is long because anywhere we fold the diameter have up and up, have big and big. Yes, so diameter is the longest chord on the circle. कोई भी chord आप ड्रॉ करो उसमें diameter सबसे लंबा chord है। So basically हमने अभी सर्कल ड्रॉ करके कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी। पहला तो सर्कल के बीचों बीच जो पॉइंट है उसको हम रेडियस बोलते हैं, सॉरी उसको हम सेंटर बोलते हैं। अगर यहाँ से हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ सर्कल जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे एक पॉइंट देके अगर हम उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, उस रेडियस का अगर हम डबल करते हैं तो हमको डायमीटर मिल जाता है, जो कि पूरे सर्कल की हमको लेंथ बता रहा होता है। और बीच में हम सर्कल को फोल्ड करते जाते हैं तो जो भी लेंथ पड़ती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं।
एंड ऐसे ही हम कॉर्ड को अगर बड़ा करते जाए तो हम डायमीटर पे पहुंच जाएंगे, जो कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और एक रिलेशनशिप हमने क्या डिराइव किया, वी ऑब्जर्व दैट डायमीटर इज double of radius, so d equal to 2 multiplied by r. Everybody write this down in your notebook, d equal to 2 multiplied by r, and give me a thumbs up once you have written. क्या लिखना है भैया? ये मैंने लिखा है ना स्क्रीन पे, d equal to 2 multiplied by r, 2 into r. सर्कल पे लिखना है ना? सर्कल के नहीं, ये तो नोटबुक में लिखो आप अपनी। सर्कल का हो गया, एक्टिविटी हो गई सर्कल की, हमने सर्कल में रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड आइडेंटिफाई किया ना, बस इसको नोटबुक में लिखो, d equal to 2 multiplied by r. Give me a thumbs up once you have written. Great. Yes. So with that, our maths class is over. I know it took a long, but we learned some really heavy concepts of geometry. So everybody give a good pat on your back. ठीक है, geometry is actually tough. ठीक है, वैसे तो मैं बोलते रहता हूँ maths easy है, but geometry is something which is actually tough, and all of you have started your way to learn the geometry. ठीक है, so अभी आपके basics हमने geometry के concepts पढ़े. ठीक है, in higher grades we will learn more complex concepts of geometry like alternate exterior angles, alternate interior angles, more complex shapes, open polygons, closed polygons. So if you are interested, you can yourself Google these terms out and find out what are these terms relating to. For now, our this class and this maths chapter, geometrical figures, is over. See you in the next class. Bye everybody. Take some good rest before your next class. Bye everyone. Hope you enjoyed today's class. See you in the next class. Bye bye.